Continuing the TTML argument further, if you if you were to go and look at the TTBS revamped website, it's a website was there, but now it's revamped. The list of the clients includes such good clients like Whirlpool, Kellogg, and many other MSCME names whom they're trying to rope in for their various projects. Okay, so it's not that they have got only limited, but they have a huge, massive clientele. Now you may say that as of now the profitability of TTML has not been much, but stocks are valued on the basis of their future potential, right? Everybody knows that. And right now it's all these digital companies which are fetching 1 lakh crore valuations plus. Paytm, Nykaa, Zomato. Paytm, of course, IPO has been a disaster, yet these are the companies which are really fetching the rich valuations that the old legacy companies, the brick and mortar companies, did not. In order to ensure continuity, you need that the various businesses need to have a digital interface, and TTML will provide. Yes, there are certain issues pertaining to the super app and the e-commerce validity of being able to sell on the common marketplace which TTML will provide. Yet these were draft rules and there are new, the government of India is trying to come up with new amendments to the e-commerce rules which will enable them and which will ensure a fair playing field. Okay, so people can do even this with using that common interface of a marketplace. They can come to related entities and sell their marketplace. This is in the draft works, so let's not, there are a lot of people are trying to mislead. It should not happen that way. So there's a lot more yet to go, and TTIBS has not even scratched the surface. Okay, and of that 1.4 lakh kilometers fiber assets will only, the valuation will only come to 9.8 lakh crores, and this was also way back in, or 7 crores per kilometer of fiber cost, which was way back in 2018. So at today's valuations it will show much higher valuation. So there's a lot of potential in this TTML stock. There is overvaluation that took place at 290 and that was corrected. And yes, way forward is good. There is a lot of new clientele. The new clients they are attracting uh, every quarter. A lot of it you have seen in the revamped website. You can go back and see. FIS continue their buying. They've bought more shares even over the last few days at the lower circuit. That shows the confidence level they have in this company. And I would suggest that you should stay calm. Yes, there is a lot of people who have invested at very high levels, like 290 I'm seeing a lot. But once this lower circuit opens, and I believe it will open shortly, you will start seeing people return back to profitability very soon. Okay, I would therefore suggest to stay calm. And yes, it was recommended by us TTML at 37 in June of 2021 and reaching 290. So we keep giving these various multi-baggers in our premium, premium plus and premium elite, and you can join them by WhatsApping me at 9820861044. तो भाई और बहनों, बहुत अच्छा पोटेंशियल है TTML का मेरे हिसाब से अभी भी. मैंने तो अपने क्लाइंट्स को कहा था और अब भी होल्ड कर रहे हैं, तो उस एक्सटेंट अब मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट भी रहता है. मैं तो चाहूँगा कि मेरे सब्सक्राइबर प्रॉफिट करें, ठीक है ना. और शेयर गिरेगा तो वो कैसे प्रॉफिट करेंगे, तो मैं तो चाहूँगा, लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूँ इसमें बहुत पोटेंशियल है. अभी भी नए क्लाइंट्स आप TTIBS के वेबसाइट पर जाके देखेंगे तो नए क्लाइंट्स को ऐड किए गए हैं. वर्लपूल को ऐड किया है, केलॉग, बहुत सारे MSMEs कॉन्स्टेंटली एंट्री कर रहे हैं. और किसी भी स्टॉक का जो वैल्यूएशन रहता है वो उसके फ्यूचर पोटेंशियल के ऊपर रहता है, पास्ट के जो परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं रहता. इसलिए आपको पेटीएम, जोमेटो, नायका के वैल्यूएशन से 1 लाख करोड़ से ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे, क्योंकि उनका फ्यूचर पोटेंशियल बहुत ज़बरदस्त है. इस वक्त डिजिटल कंपनीज़ का ही राज है. सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन वही इन्जॉय कर रहे हैं, ब्रिक एंड मॉर्टर कंपनी से ज़्यादा उनका ही प्रसिद्ध है और इनको सबसे ज़्यादा लाभ मिल रहा है. मार्केट कैप सबसे ज़्यादा इनका ही है और ये पूरे विश्व में है, ये नहीं कि इंडिया में है. अब पूरे विश्व में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो मार्केट कैप है अभी डिजिटल कंपनीज़, या फिर जो कंपनी जो डिजिटल में फोरे कर रहे हैं. इस वक्त लॉन्जिटिविटी के लिए
सर्वाइवल के लिए किसी भी कंपनी को डिजिटल इंटरफेस का बहुत ज़रूरत है। तो और ये जो है, ये ठीक है, सुपर ऐप में कुछ इश्यूज थे क्योंकि ई कॉमर्स के रूल्स जो भारतीय गवर्नमेंट ने बनाए थे, उसमें उसके अनुसार इसको मार्केट प्लेस को डिफाइन किया था। और मार्केट प्लेस जो अपने सिस्टर कंसर्न्स के प्रोडक्ट्स को कुछ इनिबिशंस थे बेचने के लिए, पर वो सब अब रिवाइज हो रहे हैं। ठीक है, मोदी साहब भी डिजिटल का फोरे लेके आए हैं। एक तो उनका सबसे बड़े दो फोरेज है, एक तो डिजिटल है, दूसरा ई व्हीकल्स है। क्योंकि कच्चे तेल के निर्भर रह रहे के भारत का अर्थव्यवस्था में काफ़ी इम्पैक्ट आता है। ये कब बढ़ जाता है, भारत तो ये इंपोर्ट करता है। तो मोदी साहब के सबसे बड़े जो दो फोरे रहे हैं, एक तो डिजिटल इंडिया और दूसरा है इलेक्ट्रिक व्हीकल। इन दोनों पे वो बहुत ज़्यादा उन्होंने एम्फोसिस दिया, और वो राइटली है। अर्थव्यवस्था पे नहीं तो बहुत फ़र्क पड़ता है। और भारत की जो पूंजी निवेश है, फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स पे भी बहुत कच्चे तेल का निर्यात करने से बहुत इम्पैक्ट आता है। ठीक है, तो एनीवे डिजिटल इंडिया जो मोदी साहब इतना चाहते हैं, वो कहते हैं कि आपका जो बटवा, जो आपका मोबाइल है, ये ही आपका बटवा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से डिजिटल तो और भी बढ़ेगा। बहुत सारी कंपनीज़ को डिजिटल इंटरफेस में और आना है। क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह जो TTML प्रोवाइड कर रही है, उससे और भी अच्छा इंटरफेस होगा। और जो वैल्यूएशन अभी तक जोमेटो, पेटीएम वगैरह को मिला है, नायका को मिला है, इतना ये तो अभी तक छुआ भी नहीं है TTML को। छोटे मोटे करेक्शंस तो आते रहते हैं। एक तरह से मैं तो कहता हूँ कि ये जो उनका आया स्टेक कि 9.5% गवर्नमेंट को देंगे, तो इसके लिए वो गिरावट आई, ये एक एक्सक्यूज़ बन गया। ये ना सोचे कि उसकी वजह से वैसे भी उसकी एक वजह थी कि ओवर वैल्यूड था। RSI लेवल्स उसके बढ़ चुके थे, 90 के ऊपर थे, और एक तरह से उसको कूल डाउन होना बहुत अनिवार्य था, नहीं तो फिर आगे का लेग बढ़ेगा नहीं। तो जो लोग समझ के आपको घबरा रहे हैं, यूट्यूब में डाल रहे हैं कि बस अब ये बस 40 की तरफ आ जाएगा जिस रेट पे गवर्नमेंट ने दे दिया है, तो दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। उन्होंने स्टडी किया नहीं है। डाइल्यूशन ऑफ स्टेक की वजह से ये स्टॉक गिरा नहीं है। ये एक स्ट्रेटिजिक मूव किया था चंद्रा जी ने और टाटा ग्रुप ने, गवर्नमेंट को हिस्सेदार बना के। अब गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट तो कोई रूल बनाएगी नहीं। लोगों को उतनी भी समझ नहीं है, मेरे से घड़ी घड़ी डाइल्यूशन के बारे में पूछ रहे हैं। ये डाइल्यूशन थोड़ी है, ये तो एक स्ट्रेटिजिक मूव था गवर्नमेंट को हिस्सेदार बना के, और उनसे, और वो गवर्नमेंट जो है उनके अगेंस्ट थोड़ी कोई पॉलिसी बनाएगी। इतना भी समझते नहीं है और निवेश करने करने बैठे हैं TTML के स्टॉक में। एक तो आप समझते नहीं है कि डिजिटल का आज वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। दूसरा, जब गवर्नमेंट को आप साझेदार बना रहे हैं, तो गवर्नमेंट आपके फेवर में ही चलेगी, कोई आपके अगेंस्ट नहीं रूल्स बनाएगी। ये आप लोग समझ नहीं रहे हैं, और अब डाइल्यूशन की बात कर रहे हो। मुझसे बड़े बड़े प्रश्न फाइनेंस के पूछ रहे, कहाँ से सीख के आ गए डाइल्यूशन का शब्द वो पूछ रहे हैं। तो भाई और बहनों, मेरे हिसाब से आपको निवेश जो किया है, घबराइए नहीं। कई लोग 290 के भाव में भी किए हैं, तो ठीक है, वो तो टॉप था। मैंने कई लोगों को कहा था ये थोड़ा हल्का हो जाइए, लेकिन फिर भी मेरे भी खुद के सब्सक्राइबर 37 में लेके 290 पे सबने नहीं किया। मेरी बात कोई लोग मान गए, कोई ने नहीं माना। मैंने तो पर्सनली फ़ोन करके भी लोगों को बताया था कि बहुत ओवर वैल्यूड हो गया, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से कोई घबराने की बात नहीं है। ये अपना वैल्यू फिर से ले लेगा। अब ये जो लोअर सर्किट लग रहे हैं वो भी निकलेंगे, जल्द आपको दिखेगा, और रिजल्ट्स भी दिखेंगे। कोई घबराने की बात नहीं है। और अच्छे मल्टीबैगर्स, अच्छे शेयर्स, अच्छे निफ्टी के ऑप्शंस, इंडेक्स ऑप्शंस, दिन भर की कैसे मूवमेंट रहेगी, ये सब के लिए सब्सक्राइब करेंगे प्रीमियम प्लस या प्रीमियम एलिट। और इसके करने के लिए संपर्क करने का नंबर है 9820861044। तो ये हफ्ता जो है आगे देखते हैं कैसे मूवमेंट आता है TTML के स्टॉक पे। और मार्केट का भी मेरे हिसाब से काफ़ी उतार चढ़ाव रहने वाला है ये हफ्ते में। बहुत ये आश्चर्यचकित, अगर आपको पूरा डिटेल में मिला नहीं है रोड मैप जो हम लोग बना के देते हैं प्रीमियम प्लस में, तो बहुत सारी गलतियां और ऑप्शंस में बहुत लॉस हो सकता है, तो बहुत संभाल के चलना होगा। और बाकी सब जो आप ज़रूर हिस्सेदार हो जाएं, हमारा भी हिस्सेदार हो जाए प्रीमियम प्लस और प्रीमियम एलिट, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हिस्सेदार बनाया है टाटा टेली ने, वैसे आप भी हिस्सेदार हो जाए आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग फैमिली के। और हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि आपको, मैं जब तक हूँ, आपको मैं नए नए
और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मैं हर दिन आपको मैं देते रहूँगा। ये मेरे तरफ से विश्वास रख के आइए, पूरी मेहनत करके जुट के करूँगा आपके लिए, ठीक है? इसके साथ मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।